house, and Oh, that's it nice. was great, ma'am. Congratulations. And you could have told me we could have postponed this session for tomorrow. No, ma'am, not an issue actually. Like all the things are now completed, and I am free now. Okay, Okay. so yes, So ma'am, we that's can. nice. And convey my wishes to your brother also. And Uh, today yes, Arif ma'am. is also live. He wants to say hi to everyone. Hello. Yeah, right. Hi. Hi. Good evening. How are you? Say I'm Hi. good. Hi. चलो. Great. Great, ma'am. He is very fond of. He says कि मुझे live कब आना है मुझे बताओ. Okay. So Yeah. yes, ma'am. मैं साथ I साथ में चाय पी पाए वो will not mind. Are sure, ma'am, sure. Actually, my dad is also serving, so मैंने अपनी पढ़ाई आर्मी स्कूल से ही करी है, एंड आई हैव बीन विद माय डैड थ्रू आउट हिज लाइफ, एंड बहुत लाइक फौजियों के बीच में ही जिंदगी कटी है, एंड इसीलिए That's फौजी, very nice. Yeah. यस मैम, फौजी बनना पसंद है, एंड मैम यस मैम, लाइक फौज की चाय की बहुत याद आती है बिकॉज लाइक मैं तो लाइक माय डैड इज हेड क्लर्क राइट नाउ, ही इज सूबेदार मेजर, सो Okay. ऑफिस में जाने का मौका मिलता रहता था, तो जैसे ही ऑफिस हम्म. में जाओ चाय जरूर आती थी तो आई मिस फौजी चाय नहीं, even I mix फौजी चाय खूब सारी चीनी डालते हैं. यस मैम. और I know, वो एक टिपिकल टेस्ट है फौजी चाय का ना, वो वैसा हम लोग बना नहीं सकते. यस मैम, एंड आई गेस फौज जो है ना चाय भेजती रहती है, आई थिंक हर 2-2 3-3 घंटे पे, ताकि जो भी फौजीज हैं ड्यूटी दे रहे हैं दे आर एक्टिव थ्रू आउट द डे. आई है चाय प्रॉपर जो चाय बनती है लाइक दूध चाय पत्ती काट के, और अब मुझे मना है मुझे नहीं पीनी चाहिए बट आई कांट लीव टी, और बिना चीनी के पीती हूँ. फौज में बहुत चीनी पी है. जी जी, बिल्कुल बिल्कुल. So, ma'am, in which city you are living, ma'am, right now? प्रेजेंटली अंकुश आई एम एट अमृतसर. Okay, Amritsar, great, ma'am. And ma'am, now like you are having your own firm, or you are working somewhere? नो नो आई एम सेल्फ एम्प्लॉयड नाउ. Okay, great, इनिशियली ma'am. आई वाज वर्किंग. Okay, ma'am, I want to know like you have done MBA from IIM Indore. You are alumnus of IIM Indore. Yes, yes. I am a luminous of I am in. I did my So, MBA in 2011. oh, okay, okay. So, yeah, the opportunity was given by Indian Army, or you just prepare for CAT and you went? It was like we have to clear the CAT exam for IIM. So Okay, okay, Indian okay. Army also has certain colleges and they have tie-ups to XMRI, MBA Yes. Gurgaon, and to IIM also. But they send you for that. I did an executive course from IIM. After Okay, my medical card, I had to work in civil. okay, okay. So So, yes, ma'am. I think, ma'am, for executive course, there is no written for CAT. Like you are shortlisted on the basis of your experience. I think so. No? few courses they have written test also. Okay, okay, okay. Fine, fine. Okay, ma'am. I think now we can start our session because, Yeah. yes. Somebody, Let, one is asking me chamomile tea. Shubham, chamomile tea has to be taken at night time. You, that is a relaxant, and if somebody is having insomnia, तो chamomile tea ले सकते हैं. मैं वैसे रोज पीती हूँ chamomile tea रात को सोने से पहले. okay. Great, ma'am. Yeah. Session start करते हैं अभी without wasting time, because I think the session is going to be very lot of things are there and time is very less. Yes, ma'am. Yes, ma'am. We have a less time, and there are lot many questions to you, ma'am. Because even I am giving SSBs. I have my upcoming SSB of Indian Navy for technical entry. So yes, ma'am. I have also doubts for SSBs. So, ma'am, first question is coming to you. Like, there are myths over OIR test, because क्या होता है मैम, लाइक आई विल टेल यू फ्रैंकली, आई वेंट टू 14 SSB इलाहाबाद लास्ट टाइम फॉर SSC Tech 54 course. Okay, so Just a moment. Somebody is saying that they are not able to hear. Am I audible to you? yes ma'am, you are audible, ma'am. My sound is coming. Am I visible properly? Yes ma'am, all things are clear, ma'am. I think there is some problem at your end. Commando, somebody is saying that we can't hear. Okay ma'am, Commando, others I think others इनके problem होगा.
Ma'am, your voice is coming perfectly fine to me. And rest others, please reply whether both of us are visible to you and the sound is coming like in a good quality or not. Please reply, everyone. Please respond. And actually, we are going to save this section. So whosoever misses anything, I would request you to go on SSB online theory page. This is for my followers also. Whosoever is listening to this conversation, this is a very, very important conversation today. I will be telling everything about, starting from the screening part till your conference day. I would request you all to just follow SSB online theory page, and you can watch this saved video on their page. It will be there. Ankush, you save this video after this live is done. Sure, ma'am, and I will post it on my all the social media pages so that it will be helpful to all the defense aspirants. Yes, And ma'am. before starting this session, I want to make one thing clear that I have never worked with SSB. But being an army officer and I have been guiding students, it is totally my perception. If somebody wants to take this, please take it. If somebody doesn't like it, he or she is free, not to follow me. I always tell this thing in my ये मैं अपने experience से चीज बता रही हूँ आपको. लेकिन अगर आपको मैं फिर भी सजेस्ट करूंगी कि अगर कोई एसएसबी में रह के आया है, आप लोग प्लीज उनसे गाइड. Yes, बट ma'am. ऑलमोस्ट सेम ही गाइडेंस होती है, क्योंकि एसएसबी जिसने क्लियर कर दिया एक बार, उसको पता होता है कि चीजें क्या है, कुछ अलग नहीं. ऑल Yes. एसएसबी. अंकुश, देयर इज सम मैम, आई थिंक मेरे को तो आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है एंड हाँ, मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि आपने ईयरफोन्स पहने हुए हैं तो आपको अपने बाहर की आवाज क्लियर नहीं आ रही है, क्योंकि बाहर आपकी डिस्टर्बेंस है थोड़ा सा. ओके. ज्यादा चीज वेट मैम, वेट अ मिनट. यस मैम, आई विल चेंज माय प्लेस. मैम, एक्चुअली मैम सबका ये भी आ रहा है कि आपका ना वॉइस बड़ा लो आ रहा है. दे आर सेइंग दैट योर वॉइस इज कमिंग लो. मैम, यू कैन यूज ईयरफोन so that अरे go and get it advance. नीचे जाना पड़ेगा एक्चुअली ना. हाँ, आवाज हो रही है. आप ये बिना ईयरफोन्स के आप ये ईयरफोन उतार दो अंकुश, इसकी वजह से ज्यादा डिस्टर्बेंस है. Yes, ma'am. Now it's clear. नाउ इट्स क्लियर एंड बेटर आल्सो. Okay. I think मैम अब नॉइस भी नहीं आ रही होगी. अच्छा, लाइक मतलब जैसे आप कह रहे थे ना, बैकग्राउंड में नॉइस आ रही है, तो आई थिंक नाउ इट्स नहीं आ रहा. क्लियर. आप बेटर है, आप पहले से बेटर है. यस मैम. अभी मेरी आवाज भी आ रही होगी सबको. Okay, we'll keep talking till the time I'm okay. Thank you. गाना मैं एक बार ईयरफोन्स पहन के देखती हूँ, अगर नहीं सही लगेगा तो आप बता देना. यस मैम, श्योर. I think now people are saying that both of us, everything is clear now. Yes ma'am, now they are saying that everything is clear. Okay, so I think that disturbance was from your side. You have people around, na? That is why. Yes ma'am. No, I understand. Now it is okay. Am I audible? Yes ma'am, you're audible ma'am. Okay, rest others, Now please you reply start that asking I me. think ma'am and my voice is clear to you all. Okay, Ankush, you start asking questions. They will see Okay. the session. We'll save it also later. Na? Okay, fine, ma'am. Ma'am, my first question to you is like, I went to SSB last time at 14 SSB Allahabad. So there was one thing like, हम लोग का OIR test हो गया था. Okay. Then after that, those OIR tests were taken by the assessors and like students think that वो test check ही नहीं होते हैं. So I think this is a myth or like is it true? So मैम पहली चीज आप ये क्लियर करें, क्योंकि ज्यादातर बच्चे क्या सोचते हैं कि OIR टेस्ट चेक ही नहीं होता है. तो आप प्लीज मैम इसके बारे में थोड़ा कमेंट करें. ऐसा नहीं होता है. All tests are checked properly.
देयर इज अ बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स जो कि वहां बैठते हैं और साइकोलॉजिस्ट होते हैं, आपके जीटीओज होते हैं, आपके इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स होते हैं, वो लोग बैठ के आपके टेस्ट चेक करते हैं। दिस इज अ मिथ के ओआई। अभी देखो पता है क्या होता है, कोई इंसान क्लियर नहीं होता है या किसी का बैच वॉश आउट हो जाता है तो वो लोग इस टाइप के र्यूमर्स फैलाते हैं, राइट। एंड माय फर्स्ट पोस्टिंग वाज एट इलाहाबाद। इलाहाबाद के पास एक जगह है दैट आई कांट डिस्क्लोज, बट मेन दैट एरिया वाज इलाहाबाद, इट वाज नियर इलाहाबाद। तो मैंने आई आफ्टर बिकमिंग ऑफिसर आई हैव गॉन टू एसएसबी मेनी अ टाइम। मैं बहुत बार एसएसबी गई हूँ एंड वहां बैठ के मैंने पूरा इनका डिटेल में देखा है कि किस तरीके से टेस्ट कंडक्ट करते हैं, कैंडिडेट्स आते हैं एंड जीटीओ कैसे असेसिंग करते हैं। जो असेसर्स होते हैं, बिलीव यू मी, दे गिव देयर 100%। ऐसा Yes. नहीं है कि वो लोग चेक नहीं करते हैं। दिस इज अ मिथ, दिस इज अ टोटल मिथ। Yes, ma'am. ठीक है। Okay. Yes, Yeah, ma'am. tell me Yes. on So my next question to you, ma'am, is like, just a minute. About screening, like screening process, that what all things candidate have to keep in mind before the process for screening, ma'am. Okay. See, I will tell you, since the time is very less, because on Instagram we have a time limit of 1 hour only. So मैं आपको brief में हर चीज बताऊंगी, right? Yes, ma'am. And Yes. as it is, I keep posting videos on my own account. So जो आपके followers हैं, मैं उनको भी एक request करूंगी, please follow my page. I really want to help all the defense aspirants, and I keep posting videos on various topics, right? So आपको सिर्फ उसका फ्रेम लगने से शॉर्ट टाइम में जितना बेस्ट मैं आप लोगों को टिप्स दे सकूंगी उतना देने की कोशिश करती हूँ। सो फॉर स्क्रीनिंग टेस्ट यू नीड टू प्रिपेयर फॉर 2 टेस्ट, वन इज योर OIR एंड देन इज योर PPDT, राइट। जो पहला आपका ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट होता है, उसके लिए आपके जितने भी IQ के क्वेश्चंस आते हैं आप उनकी घर में प्रैक्टिस करके जाओ। Yes, ma'am. गाइस, जो लोग स्क्रीन आउट होते हैं, लोग ये बोलते हैं कि बहुत सारे कैंडिडेट थे और हम स्क्रीन आउट हो गए। दिस इज ऑल्सो ट्रू, लॉट ऑफ कैंडिडेट दे अप्लाई, बट उनको आर्मी में इट इज नॉट अबाउट कि अगर आर्मी में शॉर्टेज चल रही है ऑफिसर्स की तो वो किसी को भी सिलेक्ट करेंगे। नो, दे हैव अ वेरी सॉलिड प्रोसेस एंड वेरी साइंटिफिक प्रोसेस जिससे कि वो सिलेक्शन करते हैं ऑफिसर्स की। एंड इसमें आप स्क्रीनिंग के टाइम पे या उसके बाद इफ यू गेट सिलेक्टेड, सेकेंड डे आपका WAT एंड TAT होता है, उस टाइम पे जो टेस्ट होते हैं, स्पेशली और पिक्चर टेस्ट जितने भी होते हैं, TAT हो गया आपका, PPDT हो गया, मैक्सिमम कैंडिडेट जो आउट होते हैं वो इन टेस्ट की वजह से होते हैं, राइट। एंड OIR में तो आप अपना जो भी टेस्ट है उसको क्लियर अपना घर में प्रैक्टिस करके जाइए। बिना प्रैक्टिस के आई वुड सजेस्ट कि आप लोग SSB देने मत जाओ। बिना प्रैक्टिस के SSB, बिना कोचिंग के SSB क्लियर हो सकती है गाइस, बिना प्रैक्टिस के SSB क्लियर नहीं हो सकती है। Yes, ma'am. ओके। एंड पहला आपका हो गया OIR। उसके लिए मैंने आपको बताया कि आपके जितने भी IQ टेस्ट वगैरह होते हैं उनकी आप प्रैक्टिस करके जाओ। अब तो Yes. ऑनलाइन, अब तो इतनी सारी अकेडमीज आ गई हैं ऑनलाइन, आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट पेपर्स भी मिल जाएंगे। आजकल सब कुछ अवेलेबल है। इतने सारे लोगों ने जिन्होंने SSB छोड़ के अपनी अकेडमीज खोली हुई हैं, वो वही चीजों की प्रैक्टिस करवा रहे हैं बच्चों को, ठीक है। Yes, तो ma'am. आर्मी में कुछ नया नहीं है, वही चीजों को वो घुमा फिरा के वापस से यूज करते हैं। तो आप लोग उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ, राइट। एंड सेकंड इज योर PPT टेस्ट। PPDT इज, for people who don't know, PPDT is picture perception and description test, right? Yes, ma'am. And Ma'am, इसमें आपको क्या it's करते हैं पहले discussion. स्क्रीनिंग में? It's picture perception discussion test. पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट या डिस्कशन टेस्ट, दोनों में से कुछ Okay, भी बोल okay, सकते हो आप, okay, ma'am. Okay, fine. ठीक है। क्योंकि yeah. उसके बाद डिस्कशन होता है तो लोग उसको डिस्कशन का नाम देते हैं, बट एक्चुअली इट इज डिस्क्रिप्शन टेस्ट। Okay, okay, fine, ma'am. इसमें आप क्या करते हैं, इसमें 15-15 के बैचेस में स्टूडेंट जो कैंडिडेट्स आते हैं उनको डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। और उनको एक स्टोरी नरेट करने के लिए बोला जाता है। पहले आप वो स्टोरी लिखते हो, आप उस स्टोरी को फिर आप नरेट करते हो
और फिर आप एक कॉमन कंक्लूजन पे आके डिस्कशन करने के बाद उस स्टोरी की एक कॉमन कंक्लूजन पे आके कॉमन स्टोरी बना के प्रेजेंट करते हो। यस तो मैम। यहाँ पे आपकी बहुत सारी क्वालिटीज निकल के आती हैं, स्पेशली द क्वालिटी कॉल्ड टीम स्पिरिट, जो आपकी सोशल अडेप्टेबिलिटी वाली क्वालिटी है वो यहाँ पे आती है। यस आपकी मैम। टीम स्पिरिट की क्वालिटी यहाँ पे आती है कि आप अपनी टीम को साथ में लेके चल रहे हो, राइट? यस मैम। ठीक है। तो अब इसमें पिक्चर परसेप्शन टेस्ट में ध्यान रखने वाली चीजें जो होती हैं वो ये होती हैं, आप जब पिक्चर को देखोगे और उसके बाद जब आप टेस्ट लिखोगे, ठीक है, Yes, ma'am. जो Yes, आप ma'am. पेपर के ऊपर लिखोगे, व्हेन यू आर राइटिंग ऑन द पेपर, उसके टॉप मोस्ट लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पे आपको रिकॉर्डिंग ऑफ कैरेक्टर्स करना होता है। यस मैम। ठीक है, उसको आप सर्कल करते हो, एक बॉक्स बनाते हो, उसको आप सर्कल करते हो, उसमें आप पूरे कैरेक्टर्स को डिपिक्ट करते हो, फिर Yes, आप ma'am. एक्शन लिखते हो उनका, ठीक Yes, है, ma'am. फिर आप हेडिंग लिखते हो, Yes, फिर ma'am. उसके बाद एक राइट साइड में जाके आप कैरेक्टर्स के बारे में लिखते हो कि मेल है या फीमेल है, उनकी एज कितनी है, मूड बिल्कुल। कैसा है, न्यूट्रल है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है। बिल्कुल मैम। ये चीजें एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। यस मैम। ये चीजें आपके पीपीडीटी में चेक की जाती हैं। इसका मैं यहाँ पे ये सजेस्ट करूंगी कि फॉर्मेट देखिए और जो फॉर्मेट है उसको फॉलो करो, ये चीजें भूलना नहीं है आपको लिखना। यस मैम। तीसरा, आपकी हैंड राइटिंग का बहुत बड़ा पार्ट होता है। कई लोग नहीं सेलेक्ट हो पाते क्योंकि इन्विजिलेटर को आपकी हैंड राइटिंग समझ नहीं आ रही होती आपने क्या लिखा है। बिल्कुल। प्लीज इम्प्रूव अपॉन योर हैंड राइटिंग ऑल्सो, कि जो सामने वाला पढ़ रहा है उनके लिए बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए आपकी हैंड राइटिंग में, ठीक है। बिल्कुल मैम। देन अगर आपको ये दिख रहा है कि कोई पर्सन मेल या फीमेल नहीं आप समझ पा रहे हो, कई बार बहुत हेजी पिक्चर्स होती हैं, धुंधली पिक्चर्स होती हैं, उस टाइम पे आप पर्सन को पी लिख सकते हो। लेकिन ये जो पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन बोलते हैं, इसको रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इससे क्या है, एक तो टाइम बचता है इन्विजिलेटर का, जो चेक कर रहे होते हैं। आर्मी में ना हम लोग बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ्स नहीं लिखते हैं, आर्मी में इट इज मोर ऑफ विजुअल थिंग। हम हमारे साइंस होते हैं, सिग्नल्स होते हैं, हम उनके थ्रू काम करते हैं। यस मैम। तो ये आपका पहला एक पड़ाव है कि अगर आपको फौजी बनना है तो आपको ये बेसिक चीजें जो हैं, आप एक फटाफट एक स्टोरी देख के उनमें से कैसे क्रक्स निकाल के ये सब चीजें लिख सकते हो, ठीक है। ये तो पहली चीज हो गई। उसके बाद टाइम इज लिमिटेड, टाइम का बहुत प्रेशर होता है वहां पे, ओके। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि प्रैक्टिस करके जाइए अपनी, ठीक है। टाइम इज लिमिटेड। उसके बाद जो आप स्टोरी लिखते हो, अब मैं स्टोरी पार्ट पे आ रही हूँ, इसमें गाइज मैं आपको टीएटी भी इसी में ही कवर कर दूंगी, पीपीडीटी में ही। जो आप स्टोरी लिखते हैं, स्टोरी में आप हमेशा ये चीज का ध्यान रखो कि जिसको आप हीरो बना रहे हो, दैट हीरो इज यू, दैट हीरो इज सबकॉन्शियसली यू, राइट। यस मैम। जो आप खुद हो, आप वही स्टोरी में लिखते हो। अगर तो कोई कोच्ड कैंडिडेट है, जिनको कोच्ड कैंडिडेट्स बोला जाता है, उनको तो सिखाया जाता है कि आप हर चीज पॉजिटिव लिखिए, पॉजिटिव लिखिए। लेकिन एक चीज और मैं आपको बताती हूँ, आप यहाँ पॉजिटिव लिख दोगे, एसएसबी में इतने टाइप के टेस्ट होते हैं कि कहीं ना कहीं आपकी रियलिटी जो है ना वो निकल के बाहर आती है। तो गाइज यहाँ मैं एक चीज बोलूंगी, अगर आप एसएसबी देने जा रहे हो, बी रियल, जो आप रियल में हो आप वही वहां पे जाके प्रेजेंट करो, ठीक है। यस। एंड जो आपका हीरो है उसको इन्वॉल्व हीरो इन अ गुड मैनर, अच्छे से उसकी पूरी हीरोइक जितनी भी डीड, जो भी उसके ट्रेट्स हैं हीरोइज्म वाले, वो आप बाहर निकाल के वो आप डिपिक्ट करो उसमें। एंड ये दिखाओ कि वो द हीरो इज टेकिंग चार्ज, एक्चुअली द हीरो इज यू ओनली। इफ यू आर अ हीरो इन योर रियल लाइफ, you will write the same thing in your picture test. If you are a zero in real life, you won't be able to write anything in the picture test, and then you will get rejected, right? So you need to be a hero in your real life also, then only you can write down a story, okay? And जो आपका outcome आना चाहिए पिक्चर का, that should be positive. यस मैम। अब कुछ लोगों को मैंने देखा है कि आई डोंट नो, मे बी कोचिंग अकेडमीज बताती हैं या क्या बताती हैं, बहुत सारे अब तो डिफेंस पेरेंट्स में से बात करते हैं, तो उनको ये होता है कि स्टोरी को सिर्फ पॉजिटिव ही पॉजिटिव लिखाओ, पॉजिटिव ही पॉजिटिव। गाइस 24/7 हमेशा पॉजिटिव रहना तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, मैं भी नहीं रहती हूँ, ठीक है। मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, लेकिन मैं भी 24 घंटे पॉजिटिव नहीं रह सकती हूँ। तो इट इज परफेक्टली फाइन कि अगर आपने कुछ नेगेटिव स्टोरी बना दी है, बट
एक चीज का आप ध्यान रखो, प्लॉट नेगेटिव हो सकता है लेकिन जो आप कंक्लूड करोगे वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। Yes, ma'am. अब कई डिफेंस एस्पायरेंट्स मेरे से कुछ चीजें पूछते हैं कि मैम आप पंखा चला लो अंकुश। Yes, ma'am. चला लिया. अच्छा फिर ठीक है। Yes, ma'am. इट इज नॉट अ पनिशमेंट ना दैट। No, no, ma'am. Not an issue. Yes, ma'am. तो मतलब ये नहीं होना चाहिए। कुछ एस्पायरेंट्स मेरे से पूछते हैं कि मैम हमारे कम मार्क्स आ गए और हम अब एसएसबी में जाएंगे, क्या करेंगे? सो व्हाट, कम मार्क्स आ गए तो सी गाइज, एसएसबी में कोई आपके लिए आपको ये देखने के लिए नहीं बैठा हुआ कि आप सुपर या एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट हो, ठीक है? बिल्कुल. वो लोग ये नहीं देखने के लिए बैठे। अगर रिजेक्शन भी फेस किया है आपने लाइफ में, फेलियर भी फेस किया है, कम मार्क्स भी आए हैं, टोटली फाइन है। वो लोग आप में क्या देख रहे होते हैं वो मैं आज आपको बताती हूँ। वो ये देख रहे होते हैं कि अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ भी गई है, आप उसमें से निकले कैसे, आपने ऐसा क्या किया कि आप उसमें से एक हीरो की तरह निकल आए हो। एंड ये जो आपने अगर फेलियर देखा या रिजेक्शन देखा किसी चीज में, तो आपने उसको ओवरकम कैसे किया। अगर आपके 10th में मार्क्स कम आए थे तो 12th में आपने उसके लिए क्या किया। अगर आपने कुछ नहीं किया तो ऑफकोर्स you are a failure only. Okay, I scored very less marks in 10th standard because my history was very weak. मैं अपने फाइनल एग्जाम्स में टोटली जो हिस्ट्री का पूरा सेक्शन है वो मैं छोड़ के आई थी ब्लैंक, क्योंकि मुझे हिस्ट्री आती ही नहीं है, मुझे आज भी नहीं आती। अगर आप मुझे पूछ लो हिस्ट्री के बारे में, आई एम एक्चुअली जीरो, ठीक है? तो मैंने एक चीज रियलाइज करी कि 10th में तो मेरे इतने गंदे मार्क्स आए हैं, मेरे बहुत कम, और हिस्ट्री की वजह से मेरी परसेंटेज बहुत डाउन चली गई थी, जबकि मैं बाकी सब्जेक्ट्स में एक्सेल करती हूँ हमेशा। माई मैथ्स इज वेरी गुड, माई साइंस वॉज वेरी गुड, माई इंग्लिश वॉज वेरी गुड, राइट, एंड माई इकोनॉमिक्स वॉज वेरी गुड। आई डिड माई ग्रेजुएशन इन इकोनॉमिक्स। 12th तक आते आते मैंने ये चीज समझी कि अगर मेरे 10th में मार्क्स कम आए थे तो वो किस वजह से आए थे, तो मुझे उस चीज पे इम्प्रूव करना है। तो गाइज, जब आप इम्प्रूव करने के वाले रास्ते पे आ जाते हो, दैट इज परफेक्टली फाइन। यू कैन शेयर योर रियल थिंग विद दी एसएसबी कि सर मेरा इस वजह से गैप हो गया था, या घर का ये प्रॉब्लम था, या मुझे इंटरेस्ट नहीं था और मैंने ये सब्जेक्ट लिया, बाद में मुझे रियलाइज हुआ। सो व्हाट यार, यू आर अ ह्यूमन बीइंग ओनली, और ह्यूमन बीइंग से ही गलतियां होती हैं। आर्मी में भी रोबोट्स नहीं चाहिए, उनको ह्यूमन बीइंग्स ही चाहिए। Yes, ma'am. गलतियां होती हैं, फौजी ऑफिसर से, बीइंग एन ऑफिसर मेरे से बहुत गलतियां हुई हैं, लेकिन उसको मानना, एक्सेप्ट करना और उनको इम्प्रूव करना, दिस इज व्हाट एसएसबी इज लुकिंग इन यू। ओके, एंड दिस इज फॉर रिपीटर्स ऑल्सो। कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप 1 टाइम रिपीटर हो या 10 टाइम्स रिपीटर हो। लोगों को मैंने 14 बारी में सेलेक्ट होते हुए देखा है मैंने, Yes, यू नो, ma'am. एंड दे आर लाइक, और एसएसबी का आपको नहीं पता कि वो आपने क्या चीज देख रहे हैं, ये किसी को भी नहीं पता है कि एक्चुअली वो आपने क्या देख रहे हैं। Yes, ए ma'am. आर, जस्ट अ मोमेंट, यस बेबी, गाना सुन रहा हूँ। अच्छा अभी मैं थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है, फिर बात करेंगे। वेरी नाइस। तो एसएसबी में आपसे ये चीजें एक्सपेक्ट करी जाती हैं। तो अगर आप स्टोरी भी बना रहे हैं एंड अगर आपने कुछ नेगेटिव, अब जो नेगेटिव स्टोरीज हैं, नेगेटिव कुछ आपको पिक्चर दिखाई जाती है, तो ऑफ कोर्स आप उसकी नेगेटिव स्टोरी बनाओगे, उस पर आप पॉजिटिव कैसे बनाओगे? बट आप जो उसका एंड है, एंड तो पॉजिटिव कर सकते हो ना, एंड तो आपके हाथ में है। तो आपको उसको किस तरीके से नेगेटिविटी को भी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना है, दैट इज योर स्किल्स, उस पर आपको काम करना है, ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये मैं आपको चीज मैंने बताई है पीपीडीटी के बारे में, आपको स्टोरी राइटिंग बता रही हूँ अभी मैं। देन आप उसमें लिखोगे कि मेन थीम क्या है इमेज का, सबसे स्टार्टिंग में, ठीक है? फिर आप सोचोगे जो भी आपने सोचा उस टाइम पे। एक्चुअली ना इतने बड़े बड़े टॉपिक है कि एक ही टॉपिक एक लाइव सेशन में करने वाला है। तो मैं जल्दी जल्दी बताने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है? तो नरेशन का आपको ज्यादा टाइम नहीं लेना है, सिर्फ 1 मिनट लीजिए सिर्फ नरेशन ऑफ द स्टोरी के लिए, एंड इट शुड बी वेरी क्लियर। आपकी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप झट से आप देखो और आप नरेट कर दो स्टोरी को, ठीक है? एंड कैरेक्टर का डिस्क्रिप्शन ये नहीं भूलेंगे आप। स्मॉल कैप्शन दीजिए अपनी स्टोरी को, कैप्शन जरूर दो, जो भी आप स्टोरी राइट कर रहे हो उसको कैप्शन जरूर दो आप, ठीक है? उसके बाद आपका आता है पिक्चर को, हाउ यू नरेट द स्टोरी। दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट? इसमें अब क्या करते हैं कि सब 15-15 के बैच में सब बैठे होते हैं,
उसमें जो लोग गलतियां करते हैं वो 2 या 3 ही होती हैं। सबसे पहले गाइस, यहाँ पे अगर आप बैठे हो तो अपनी बॉडी लैंग्वेज जरूर देखो। ये नहीं कि आप बैठे हो, कोई और स्टोरी नरेट कर रहा है तो आप यूं करके बैठ गए हो, ठीक है, या आप यूं करके बैठे हो, या आप यूं नीचे देख रहे हो, या आप ऊपर देख रहे हो, या आप इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो। जीटीओ एक एक कैंडिडेट को हर बार नोट कर रहा होता है। जिस दिन से आप एसएसबी के अंदर कदम रखते हैं ना, डे 1 से, मेरे ड्रेस वाली एक वीडियो मैंने डाली थी कि क्या ड्रेस पहनना चाहिए एसएसबी में। डे 1 से जिस दिन आप एसएसबी में कदम रखते हो ना, आपकी आपको लोग देखना शुरू कर देते हैं एंड ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। Yes. तो स्टोरी टेलिंग में जब नरेशन हो रहा होता है स्टोरीज का, हर कोई बैठा होता है, जिसकी टर्न है अगर वो स्टोरी बोल रहा है तो जीटीओ सबको देख रहा होता है। दे आर ट्रेन्ड फॉर दिस थिंग। इट इज लाइक ऑफलाइन एंड ऑनलाइन आपकी सारी एक्टिविटीज नोट हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप जब आप कुछ एक्ट कर रहे हो तभी आप नोटिस में हो। नो, इफ यू आर नॉट एक्टिंग, इफ यू आर इन अ पैसिव रोल ऑल्सो, यू आर बीइंग चेक्ड एंड ऑब्जर्व। तो अपनी बॉडी लैंग्वेज पे जरूर ध्यान दीजिए। और जो बोल रहे हैं, जिनकी टर्न है बोलने की, स्टोरी डिस्क्राइब करने की, उनकी बॉडी लैंग्वेज शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट। बहुत कॉन्फिडेंटली आप बात कीजिए वहां पे खड़े होके, और इंटरेस्ट दिखाइए। अगर आप साइड में भी बैठे हैं और आपका बगल वाला कैंडिडेट बोल रहा है तो आप उसमें भी इंटरेस्ट दिखाइए, ठीक है। एंड जब आप बोल रहे होते हो ना, स्टोरी डिस्क्राइब कर रहे होते हो, तो जीटीओ की तरफ मत देखो, आप एक दूसरे की तरफ देखो। दीज आर योर पर्सनैलिटी। मैं कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स पे भी साथ साथ में ही बात करती जाऊंगी इन सबको कवर करते हुए। तो जब आप स्टोरी डिस्क्राइब कर रहे होते हो तो आप एक दूसरे को, जैसे आप आपस में डिस्कशन करते हैं वैसे करना है। कैंडिडेट्स क्या करते हैं, वो प्रेशर में आके वो जीटीओ को देखते हैं, जीटीओ को देख के स्टोरी सुनाते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको। आपको अपने जो आपके साथी बैठे हुए हैं साथ में, उनको देख के स्टोरी डिस्क्राइब करनी है, ठीक है। एंड एंड इंश्योर करो कि पीपल आर इंटरेस्टेड इन यू। लोगों को इंटरेस्टेड कैसे रखोगे आप? आज आप मेरा लेक्चर सुन रहे हो, आप लोग मुझे देख रहे हो, एंड यू आर इंटरेस्टेड इन व्हाट आई एम सेइंग, राइट? आर यू इंटरेस्टेड और यू आर नॉट इंटरेस्टेड? Why? Because of my facial expressions and have eye to eye contact. आप वो कांटेक्ट सबसे बनाइए, ठीक है। और जरूरी नहीं होता बोल के आपको किसी का एक्नॉलेजमेंट लेना होता है। आप अपने एक्सप्रेस अंकुश, am I visible? Yes, ma'am. Visible, ma'am. Okay. Fine. तो ये तो अपना हो गया फर्स्ट डे। First day, yes, ma'am. Now second day. Yes, ma'am. जस्ट अ Psych. मोमेंट। Yes, ma'am. सेकेंड डे इज योर साइकोलॉजी टेस्ट, राइट? एंड साइकोलॉजी टेस्ट में आपका WAT होता है, TAT होता है। तो TAT तो मैंने इसमें कवर कर दिया कि TAT थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट आप कैसे करोगे। उसमें 11 पिक्चर्स आते हैं, 10 स्टोरीज आपको दिखाई जाएंगी। 11 तो आपको पता है एक ब्लैंक स्टोरी आती है उसमें, ठीक है। उसकी आप प्रैक्टिस पहले से करके जा सकते हो घर से ही। आप कोई ऐसी स्टोरी सोच के रखो जो एक्चुअल में वैलिड हो, जो अच्छी हो। आप ऐसे कैंडिडेट से बात कर सकते हो जो सिलेक्ट हो गए हैं, उन्होंने क्या स्टोरी बना के लिखी थी। लोगों से बात करो, लोगों से पूछो, एंड लोगों से थोड़ा सा ज्ञान लो आप, क्योंकि अगर जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उन्होंने क्या स्टोरी बनाई थी। एंड दैट स्टोरी शुड बी द बेस्ट स्टोरी। इट शुड बी अ वेरी सिंपल स्टोरी एंड अ वेरी पॉजिटिव स्टोरी, जिसमें कि एक हीरो होना चाहिए। हीरो आपको डिस्क्राइब करता है, और जो भी आपने ब्लैंक स्टोरी पे आप कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। Yes, तो ये आपका स्टोरी का हो गया। एंड Now coming to WAT. WAT में भी आपको जो है, मैंने एक कुछ नोट्स बनाए थे आपके लिए। Okay, okay. मुझे लगा था कि मैं इसमें बताऊंगी। मैं जनरली नोट्स बनाती नहीं हूँ, बट आज मैंने कुछ जस्ट ऐसे ही सोचते हुए लिखा था। Okay, okay. हाँ, मैंने एक चीज लिखी थी। मुझे किसी ने क्वेश्चन पूछा था एक बार मेरे इसमें मेरे इंस्टाग्राम पे, तो मैंने आंसर दिया था कि हाउ टू राइट अ गुड स्टोरी फॉर PPDT। किसी ने मुझसे पूछा था कि PPDT में कैसे स्टोरी लिखते हैं। और नेगेटिव इमेजेस, मैंने एक चीज बताई थी, लाइफ जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती है। हम क्या करते हैं जनरली, जब स्टोरी आती है कोई नेगेटिव, तो हम हमेशा नेगेटिव
स्टोरी लिख देते हैं और उसका एंड भी हम नेगेटिव करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं अभी बोलूंगी, और अगर आप लोग समझ जाओ, लाइफ इज नॉट ब्लैक एंड व्हाइट, यू नो, लाइफ इज ग्रे। वैसे तो मेरे जैसे इंसान के साथ, वैसे कुछ लोगों के साथ ये होता है, मेरे जैसे इंसान के साथ नथिंग इज ब्लैक एंड व्हाइट, नथिंग इज ग्रे, इट इज ईदर ब्लैक और व्हाइट, कि अगर ये चीज है या चीज नहीं है। ये तो हम लाइफ में फॉलो करते हैं ये वाला रूल। बट स्टोरी राइटिंग में जब आप स्टोरी राइटिंग करेंगे तो जो ब्लैक एंड व्हाइट भी है ना, उसके बीच में एक ग्रे पार्ट भी आता है, आप उसको ध्यान में रख के स्टोरी लिखो। नथिंग इज वेरी बैड एंड नथिंग इज वेरी गुड, ओके। तो बीच में अपने आप को रख के एक स्टोरी लिखिए आप। जैसे कि आपका जो कंसेप्ट होना चाहिए वो ओरिजिनल होना चाहिए, ठीक है। अब एक बहुत सारी स्टोरीज आती हैं, एक एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे कि एक लेडी है, वो दूसरी लेडी को रिक्वेस्ट कर रही है या नीचे बैठ के प्लीड कर रही है, तो बहुत सारे लोग इस पे कुछ नेगेटिव स्टोरी बना देंगे, कुछ अच्छी स्टोरी बना देंगे। तो कोई ऐसी स्टोरी, अब मैं यहाँ पे ये नहीं बताऊंगी कि आप क्या स्टोरी बनाई है, क्योंकि वो फिर ये हो जाएगा, क्योंकि जो मैं सोचती हूँ वो आपकी थिंकिंग को इम्पोज करना हो जाएगा। मैं वो नहीं करना चाहती हूँ यहाँ पे। हर इंसान का सोचने का तरीका अलग है, हर इंसान की सोच अलग होती है, ठीक है। आई रियली वांट कि आप लोग एसएसबी में जाओ, आप अपना दिमाग यूज करो, और बस मैं आपको आपके सॉफ्ट स्किल्स कैसे ठीक करने हैं उनके बारे में बता सकती हूँ। तो जो भी आप स्टोरी देखेंगे, ब्लैक है या व्हाइट है, या तो वो अच्छी आपको स्टोरी बनाने को मिलेगी, या आप नेगेटिव इमेज भी देखोगे, तो उस नेगेटिविटी में भी आप देखिए कि पॉजिटिविटी क्या ढूंढ सकते हो। इमेज मैंने आपको फिर बताया, स्टोरी का प्लॉट नेगेटिव हो सकता है, लेकिन उसका कंक्लूजन शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। अब कई लोग बनाते हैं, कोई पानी में कूद रहा है, बड़ी कॉमन सी स्टोरी आती है ये, पानी में कूद रहे हैं और कोई लोग ये बनाते हैं कि वो डूब गया। क्यों डूब गया? आप कुछ भी आप बना सकते हो। जैसे मैं एक नॉन स्विमर हूँ, मुझे स्विमिंग अच्छे से नहीं आती है, मुझे डर लगता है, तो मैं अगर मुझे स्टोरी बनानी हो तो मैं इस टाइप की बना सकती हूँ कि हाँ, मैं पानी में, मुझे डर लगता था, लाइक में कूदी और मैं डूबने लगी थी, लेकिन फिर मुझे ट्रेनिंग क्लियर करनी थी अपनी एसएसबी की, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, और मैं, क्योंकि मुझे स्टार्स चाहिए थे, तो मेरा एक वो एक एम था, एक गोल था लाइफ का, तो मैंने वो भी 25 मीटर का स्विमिंग पूल भी क्रॉस कर लिया। तो कुछ भी बना सकते हो आप। अपनी जो ओरिजिनलिटी है उसके ऊपर चीजें लिखना शुरू करो। जब आप अपनी ओरिजिनलिटी पे घर में प्रैक्टिस करना शुरू करोगे तो गाइस इसमें दो फायदे होंगे। एक, आपको फायदा होगा, आपकी एसएसबी के लिए तैयारी हो रही है। दूसरा, आपको फायदा होगा, आपको अपने रियल ट्रेड्स पता चलेंगे कि आपको खुद पे कहाँ काम करने की जरूरत है। यस मैम। जब आप अपनी ही लिखी हुई चीज दोबारा पढ़ते हैं ना, मैं अपनी वीडियोस, मैं अपने लाइव शोज दोबारा देखती हूँ, वो इसलिए देखती हूँ कि ओके, फिर मुझे समझ आती है, अच्छा मैंने यहाँ पे मैं ये बोल सकती थी, मैं यहाँ पे ऐसे ये चीज और ऐड कर सकती थी। तो हम जब अपने आप को दोबारा से पढ़ते हैं या सुनते हैं ना तो हमें अपनी मिस्टेक्स का भी पता चलता है। तो यहाँ आपके दो फायदे हो रहे हैं। सो इसी दैट इज आई एम सेइंग दैट प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। पहली बार हो सकता है कि आपका वो अच्छा ना हो, सेकंड टाइम आप और प्रैक्टिस कीजिए, थर्ड टाइम आपको और अपने मिस्टेक्स आपकी निकल के सामने आएंगी, ठीक है। तो ऐसे आप अपना स्टोरी राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट WAT, एंड WAT इज लाइक आपका वर्ड एप्रिसिएशन टेस्ट होता है। उसकी तो गाइस बिना प्रैक्टिस से बिल्कुल मत जाना। वो इसलिए क्योंकि इतने सारे वर्ड्स आते हैं, टाइम इतना कम होता है। अभी स्टोरी राइटिंग में भी आपको सिर्फ 4 मिनट मिलते हैं, ठीक है। उसमें भी आप टाइम बांटो, घर पे रहो, प्रैक्टिस करो एंड टाइम बांटो, क्योंकि 1 मिनट में मुझे ये करना है, नरेशन ऑफ द स्टोरी शुड बी इन 1 मिनट। अरे कम डाउनस्टेयर, पीछे आ जाओ। मुझे 1 मिनट स्टोरी नरेट करनी है, फिर उसके बाद मुझे 1 मिनट में ये लिखना है, 1 मिनट मुझे कंक्लूजन के लिए रखना है। तो आप अपने टाइम के साथ, यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है एसएसबी की प्रिपरेशन के लिए। एसएसबी इतनी टफ नहीं है गाइस। एसएसबी के लिए आपके OLQs, जो 15 OLQs को घोट के अपने अंदर डाल लो, नहीं दिया तो, ठीक है। एंड दूसरा आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो एसएसबी में है, दैट इज योर टाइम मैनेजमेंट। गाइस इंग्लिश सबको आती है, ठीक है, और एसएसबी में कोई बहुत सारी इंग्लिश नहीं चाहिए, बेसिक इंग्लिश चाहिए। बेसिक सेंटेंसेस हर कोई बना लेता है, ठीक है, लेकिन हम कहाँ पे मात खाते हैं, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहां होता है टाइम। और टाइम मैनेजमेंट में क्या होता है, इतने सारे टेस्ट होते हैं और टाइम इतना कम होता है कि हम प्रेशर में आ जाते हैं।
जब इंसान प्रेशर में आ जाता है ना तो उसके रियल ट्रेट्स निकलने शुरू हो जाते हैं नेगेटिव वाले। तो आपको प्रेशर में आके भी पॉजिटिव रहना, इस चीज की प्रैक्टिस घर पे करनी है। उसके लिए ये टेस्ट सिर्फ एक वे ऑफ एक तरीका है आप लोगों को चीजें सिखाने का। ये टेस्ट जिंदगी में कहीं काम नहीं आने वाले हैं, ये फौज में भी कहीं काम नहीं आने वाले हैं, लेकिन इन टेस्ट को साइंटिफिक तरीके से हमारे ब्रेन से रिलेटेड और हमारी क्वालिटीज कैसे उभर के बाहर आती हैं उसके लिए बनाया गया है। क्योंकि इन टेस्ट के थ्रू इंसान प्रेशर में आके किस तरीके से बिहेव कर सकता है, उसकी कौन कौन सी क्वालिटीज निकल के बाहर आती हैं, वो चीज चेक की जाती है यहाँ पे। तो आप बेसिक चीजों का ध्यान रखो, प्रैक्टिस करके जाओ। दूसरा, आप पॉजिटिव रहने की कोशिश करो हर चीज में। आपके सेंटेंसेस भी पॉजिटिव होने चाहिए। जैसे एक नाइफ वर्ड है, नाइफ के लिए बहुत सारा, जिसका जो नेगेटिव सोचेगा वो तो ये बोलेगा कि नाइफ इज बीइंग यूज्ड बाय अ थीफ और रॉबर्स यूज द नाइफ, नाइफ इज यूज्ड फॉर कटिंग दिस। तो आप नाइफ को और भी चीजों के लिए यूज कर सकते हो। आप कार्विंग के लिए यूज कर सकते हो, आप वेजिटेबल्स के लिए यूज कर सकते हो। बहुत आपको ये इस तरीके से अपने ब्रेन को बनाना पड़ेगा कि हर चीज में पॉजिटिव आउटकम भी हो सकता है, हर सिचुएशन में पॉजिटिव आउटकम भी हो सकता है। ये लाइफ का बेसिक वो है कि हम नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी कैसे ढूंढते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक OLQ मुझे यहाँ याद आ रहा है। जैसे आपको कितना भी करेज एक OLQ है। करेज क्या होता है? करेज इज लाइक कि मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में भी जहाँ डर आपका रहता है ना, डर एक जो बोलते हैं फियर फैक्टर होता है लोगों को, कि जब फियर आ जाता है तो बहुत सारे लोग बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो फियर फैक्टर भी है, उसमें भी आके जो डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ता है, उस चीज को हम करेज बोलते हैं। ठीक है, तो लाइवलीनेस का मतलब यही है कि कितनी भी नेगेटिव से नेगेटिव या बुरी से बुरी सिचुएशन हो जाए लाइफ में, आपको चीयरफुल रहना है, आपको अच्छे से सारी चीजें करनी है। तो ये सारी आर्मी ऑफिसर की क्वालिटीज हैं जो आपके इन टेस्ट के थ्रू आप में चेक की जाती हैं। तो आप इन सब बेसिक चीजों का ध्यान जरूर रखिए। ठीक है, थर्ड डे आपका आता है GTO। एंड GTO में आपके बहुत सारे टेस्ट होते हैं। आपका कमांड टास्क हो गया, आपका ग्रुप टास्क हो गया, आपके लेक्चरेट हो गए, आपका ऑब्स्टेकल कोर्स होता है। ये सारे टेस्ट आपके GTO में आते हैं। ठीक है, तो आपका जो GTO में ग्रुप डिस्कशन भी आता है। ग्रुप डिस्कशन इज समथिंग लाइक PPDT में जो आप प्रेजेंट करते हो, आपको टॉपिक दिया जाता है, वो टॉपिक कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक होता है, आप उसके ऊपर आप एक डिस्कशन करते हो और एक कॉमन पॉइंट पे आते हो, राइट। एंड इसमें बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। अब मुझे किसी ने पूछा था कि फिश मार्केट आपने पूछा था शायद से, कि फिश मार्केट बन जाती है और उसको कैसे डील करना है। वहाँ फिश मार्केट होती है, आई अंडरस्टैंड। अब मेरी जो आवाज है ना, आई एम नॉट वेरी लाउड, ओके, बेसिकली आई एम नॉट वेरी लाउड। तो जब बहुत सारा ग्रुप बात कर रहा होता है तो मुझे अगर उसके बीच में अपना पॉइंट कन्वे करना है, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती हैं लोगों के साथ, स्पेशली लड़कियों में, कि मेरी जैसे लड़कियों की आवाज थोड़ी सी मेरी आवाज इतनी तेज नहीं है, और मेरे ग्रुप में बहुत सारी लड़कियां थी जिनकी आवाज बहुत जोर से वो बोलते थे और मेरी आवाज वहाँ दब जाती थी, मैं आज भी तेज नहीं बोल पाती। उस केस में आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज एंड आपका कंडक्ट, जरूरी नहीं है कि आपको बहुत बोल्डली बोलना ही होता है हर जगह। अगर फिश मार्केट भी बनी है, उनको बनने दो आप अपने हैंड से या अपने एक्शन से बता सकते हैं कि एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, आई ऑल्सो हैव अ पॉइंट, ओके, एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, प्लीज एक्सक्यूज मी, तो आई ऑल्सो हैव अ पॉइंट टू कन्वे। ठीक है, आप अपने हैंड जेस्चर से एक्सक्यूज मी बोल सकते हो, आप थोड़ा सा फर्मली बीच में जाके, आपको लड़ने की जरूरत नहीं है वहां पे। तो वो ऑटोमेटिकली, एंड जब आपको नॉलेज होगी ना सब्जेक्ट के बारे में तो आप पहले ही अपना एक ऐसा ऑरा क्रिएट कर लें जाते ही। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स तो आपके बन जाते हैं वहां पे। तो आप नॉलेजेबल बातें करो लोगों के साथ, फालतू बातें मत करो। बेसिक पर्सनालिटी ट्रेट्स बता रही हूँ ये, जो भी बोलो उसमें वेट होना चाहिए। एंड पीपल शुड सी यू एज अ कि ये अगर मुंह खोलेगी तो मतलब वो पॉइंट बिल्कुल सॉलिड आने वाला है हमारे पास।
इस टाइप की अपनी पर्सनालिटी को बनाओ आप, ठीक है। मैं भी बहुत बोलती हूँ, जो लोग मेरे अपने हैं उनके साथ मैं बहुत बात करती हूँ, बहुत बोलती हूँ, लेकिन जनरली मैं नहीं बोलती हूँ। उससे क्या होता है ना, जो इंसान कम बोलता है, और कोशिश करो कि कोई वेट वाली चीज ही बोलो आप, जिसमें वेट हो। वो आप कैसे कर सकते हो, जब आपको नॉलेज होगी चीजों के बारे में। तो आप अपने करंट अफेयर्स के टॉपिक एंड हर चीज अच्छे से पढ़ के जाओ। अगर आपको नॉलेज होगी ना, तो फिश मार्केट में भी आप अपना पॉइंट किसी ना किसी तरीके से कन्वे कर दोगे। वहां लड़ने की जरूरत नहीं है, किसी को धक्का मारने की जरूरत नहीं है। इफ यू नो फिश मार्केट इज देयर, उनको करने दो। आप अपना आराम से बीच में घुस के कैसे भी करके आप बोलो कि एक्सक्यूज मी सर, आई हैव अ पॉइंट टू कन्वे, या एक्सक्यूज मी ग्रुप, लेट मी यू नो। एंड आप ये भी बोल सकते हो लोगों को, एक बड़ा अच्छा तरीका है कन्वे करने का, कि आई एम विद सो एंड सो टेस्ट नंबर, ठीक है। आई मैं बिल्कुल इनके साथ हूँ, मैं मतलब इनका पॉइंट जो जो इन्होंने पॉइंट कन्वे किया है बिल्कुल, बट हम इस चीज को इस तरीके से भी कर सकते हैं। Yes. ये एक तरीका है लाइफ में, अपने आप को इम्पोर्टेंट, अपना पॉइंट कन्वे करने का। Like बीइंग अ जूनियर ऑफिसर, we generally do this like, gentlemen, I agree with you, but not completely. Then we give our point. हाँ, ये भी बोलने की जरूरत नहीं है नॉट कम्प्लीटली। आप ये बोल सकते हो कि जेंटलमैन आई एग्री विद यू, या चेस्ट नंबर सो एंड सो, आई एग्री विद यू, बट आई में सबमिट, मेरा मेरा ये सबमिशन है, ये भी एक पॉइंट है। तो आपका अगर पॉइंट वैलिड और हैवी होगा ना, तो ऑटोमेटिकली ग्रुप बिल्कुल चुप कर जाएगा। Yes, ma'am. ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या, उसके लिए आपको नॉलेज होनी बहुत जरूरी है सब्जेक्ट Exactly. की। अगर आपको नॉलेज नहीं है और आप ब्लफ कर रहे हैं या हवा में बोल रहे हैं, तो नोबडी इज गोइंग टू लिसन यू। Exactly, ma'am. Okay, so for this I would highly suggest you, यहाँ पे highly recommend this thing that you be thorough with your current affairs। जब तक आप अपने करंट अफेयर से थरो नहीं हो, आपको चीजें पता नहीं है, तो आप उतना वेट के साथ बोल नहीं पाएंगे वहां पे, ठीक है। एंड ये तो आपका हो गया ग्रुप लेक्चरेट के टाइम पे। लेक्चरेट के टाइम पे अगेन योर बॉडी लैंग्वेज शुड बी वेरी गुड, ओके। यू शुड बी कॉन्फिडेंट। सी इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट ऑल्सो अपीयर टू बी कॉन्फिडेंट, प्रैक्टिस दिस। कुछ बच्चे कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, हर बच्चा एक जैसा नहीं होता है। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं भी है ना, तो प्रैक्टिस करिए कि कॉन्फिडेंट दिखें, ठीक है। सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करो। बहुत सारी चीजें होती हैं। फौजी ऑफिसर की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है जो हमें सिखाया जाता है, हमारे ट्रेनिंग में आपको बोला जाएगा कि आप एक पोकर फेस बना के रखें। पोकर फेस इज व्हाट, कि आपके अंदर एक्सप्रेशन क्या है, क्या चल रहा है, सामने वाले को पता नहीं चलना चाहिए, राइट। ये बेसिक ट्रेनिंग जो देते हैं लोग, ये उनके ट्रेट्स होते हैं। तो इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, अपीयर कॉन्फिडेंट, कोशिश करो कि कॉन्फिडेंट दिखो। और अगर आपको नॉलेज है ना, तो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आपके अंदर। Can somebody tell me that am I audible? I am audible. AFA with love. Video paused. Can you hear me? Ankush, where are you? Ma'am, actually, ये क्या हुआ था? ma'am, I am in my hometown in Bulandshahr. तो मैम यहाँ पे ना Okay. यस मैम, नेटवर्क थोड़ा वीक रहता है, बट आई थिंक नाउ माय वॉइस इज क्लियर। Yeah, it is very clear now. यस मैम। ओके मैम, कंटिन्यू मैम। Okay. So what I was saying, लेक्चरेट बॉडी लेक्चरेट का मैं आपको बता रही थी। तो आप यू शुड बी वोकली एक्टिव ऑल्सो। ऐसे नहीं है कि आपको नॉलेज है, आपने एक पॉइंट दिया और फिर आप बिल्कुल डेड की तरह बैठ जाओ, ऐसे मत करना वहां पे, ठीक है। वोकली एक्टिव होना जरूरी है, चीयरफुल होना जरूरी है,
बिल्कुल जिसको बोलते हैं एनर्जेटिक होना बहुत जरूरी है। वहाँ पे आपके अंदर वो जील होनी चाहिए कि आपको कोई चीज बता रहे हो, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप बस गए हो एक ड्यूटी की तरह आपने किया और फिर आप ऐसे बैठ गए हो, राइट। तो Yes, ये ma'am. सब बेसिक चीजों का आपको वहाँ पे ध्यान रखना है लेक्चरेट के टाइम में। एंड इसके बाद आपका आता है ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन का मैंने आपको बता दिया, Yes, वो ma'am. जैसे आप बता दिया. पीपीटीटी में करेंगे। अपनी बॉडी लैंग्वेज का ध्यान रखना, लोगों को साथ में लेके चलो। अगर आपको किसी के पॉइंट से अगर आप नहीं भी आपको हो रहा है कि ओके मुझे इसका पॉइंट नहीं पसंद, ठीक है, स्टिल ना तब भी आप ये चीज बोलो कि आई एम विद यू चेस्ट नंबर सो एंड सो, बट मुझे मतलब आई हैव अ पॉइंट टू कन्वे एंड लेट मी सबमिट माय पॉइंट ऑल्सो। तो हो सकता है कि वो पॉइंट अच्छा हो, तो आप सबको साथ में लेके चलो। किसी का भी पॉइंट देखो गाइस, एक चीज मैं बताती हूँ, किसी की भी परसेप्शन गलत या सही नहीं होती है। इट इज हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ, हाउ यू प्रेजेंट योर पॉइंट विद लॉजिक, वो चीज होता है। कोई चीज सही या गलत नहीं होती है, हर इंसान सही होता है। हर इंसान का हर एक चीज को कन्वे करने का तरीका और लेने का तरीका इज लाइक डिफरेंट, Yes, ma'am. बट इट इज नॉट रॉन्ग। हम बोलते हैं ना ये इंसान गलत है, ऐसा नहीं होता है। हम ये बोल सकते हैं कि वो इंसान डिफरेंट है, उसका Yes, ma'am. सोचने का तरीका डिफरेंट है। अगर कोई इंसान अपने लॉजिक से गलत चीज भी समझा रहा है तो वो गलत नहीं है, Yes, ma'am. ठीक है। तो यहाँ पे आपको किसी के लिए अगेंस्ट नहीं जाना है, चेयरफुल रहो, अपने दोस्त बनाओ वहाँ पे एंड लोगों के साथ मिलके रहो, सो दैट कि डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन में भी लोग आपको सुने। एंटी हो जाओगे तो कोई आपको सुनेगा नहीं, आपको लोग काटने की कोशिश करेंगे। सो ये जो आपका यहाँ पे प्रोसेस होगा ना, वो डे 1 से शुरू हो जाएगा जब आप एसएसबी में एंटर करेंगे। बी नाइस टू एवरीवन, मेक फ्रेंड्स, सबको अपना फ्रेंड बनाओ। और जब आपको बैचेस में बांटा जाएगा तो उसमें तो अपनी खूब दोस्ती रखो आप, कि आपको बहुत फायदे होंगे। उसके आपको फायदे ये होंगे कि पीपल विल इनवाइट यू एज हेल्पर्स आल्सो इन योर कमांड टास्क, Yes, ma'am. ओके। तो उससे भी बड़ी अच्छी क्वालिटी निकल के आती है कि ये बंदा सोशली बहुत अडेप्टेबल है। एंड सोशल अडेप्टेबिलिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर बीइंग एन आर्मी ऑफिसर, ठीक है। Yes, ma'am. ये आपका लेक्चरेट हो गया। उसके बाद आपका क्या आता है, आपका आता है जीटीओ में आपका आता है लेक्चरेट में। एक और चीज है, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स भी चेक किए जाते हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत सारी चीजें आती हैं। आप कैसे प्रेजेंट करते हो अपने आप को, किस तरीके से लैंग्वेज आपकी, ठीक है। इंग्लिश की प्रैक्टिस करो। अगर इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हो तो दोनों को यूज कर सकते हो आप, हिंदी एंड इंग्लिश को, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल इज मोर इम्पॉर्टेंट देन यूजिंग द लैंग्वेज। कि आप दूसरे को कैसे कन्विंस कर पा रहे हो, दूसरों को कैसे अपना पॉइंट कन्वे कर पा रहे हो और वो लोग आपसे कन्विंस हो पा रहे हैं, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन नोइंग इंग्लिश और हिंदी, ठीक है। एंड Yes, ma'am. तो इंग्लिश आनी चाहिए, नहीं भी है तो कोई बात नहीं। मैंने ऐसे कैंडिडेट्स को सिलेक्ट होते हुए देखा है जिनको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती है, लेकिन वो जब बोलते हैं तो वो इस तरीके से बोलते हैं कि सामने वाला उनको रिजेक्ट कर ही नहीं सकता। तो आपका होल्ड होना चाहिए आप जो भी बोल रहे हो उसके ऊपर। तो प्रैक्टिस ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। एंड उसके बाद ये आपका फर्स्ट कैटेगरी होती है जीटीओ में, दैट इज योर ग्रुप डिस्कशन। देन आपका लेक्चरेट होता है, ठीक है। तो ये आपकी फर्स्ट कैटेगरी में आता है। और इसमें आपको नॉलेज होनी चाहिए, जनरल अवेयरनेस बहुत जरूरी है। करंट अफेयर्स की पूरी अच्छे से तैयारी करके जाइए। अपनी बॉडी लैंग्वेज देखिए, आपके जो बॉडी लैंग्वेज, आपके स्किल्स इसमें चेक किए जाएंगे, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स आपके इसमें चेक किए जाएंगे। तो उसके ऊपर बहुत कंसंट्रेट करना है आपको, Yes, ma'am. ठीक है। देन कम्स द कैटेगरी 2। जीटीओ की जो कैटेगरी 2 है, दैट इज योर स्नेक रेस एंड इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स। एक स्नेक रेस कराते हैं, वो सांप बना के देते हैं, एक वो कपड़े का है ना मुझे Yes, याद है ma'am. उसको उठा उठा के सारे चलते हैं और ऑब्स्टेकल्स क्रॉस करने होते हैं सबको। तो उसमें आपका क्या देखा जाता है, उसमें जो क्वालिटीज आपकी चेक की जाती हैं वो है आपकी स्ट्रेंथ, कितने स्ट्रांग हो आप, आपका स्टैमिना, आपका बॉडी का बैलेंस, ठीक है, एंड फिजिकल फोबियाज। अब जो भर्ती होती है ना, भर्ती में तो डायरेक्ट टेस्ट होते हैं, रनिंग, कितने किलोमीटर रनिंग हो गई, इतने मीटर का ये हो गया वो हो गया। ऑफिसर्स की सिलेक्शन में वैसा अलग से कुछ नहीं होता है, लेकिन आपकी फिजिकल स्टैमिना एंड स्ट्रेंथ वो इन ऑब्स्टेकल से ही चेक कर लेते हैं वो लोग। Yes, तो ma'am. आपका स्नेक रेस और आपका जो इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स हैं, इसमें आपका स्ट्रेंथ, फिजिकल स्टैमिना, आपको किन चीजों से डर लगता है, कि आपको हाइट से डर लगता है, आपको वो ऊपर से आप जंप करते हो ना, आपको हाइट से डर लगता है,
वो सारी चीजें इसमें से निकल के आ जाती हैं, क्योंकि जो कैंडिडेट को हाइट से डर लगेगा वो बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स नहीं कर पाएगा। बिल्कुल। ठीक है, और इसमें आपका स्टेमिना भी चेक किया जाता है। आपको 3 मिनट के अंदर आपको सारे अपने ऑब्स्टेकल्स कंप्लीट करने हैं। तो अगर इफ यू आर अ गुड रनर, आप 3 मिनट्स में रिपीट भी करोगे। मैंने 3 Yes. ऑब्स्टेकल्स रिपीट भी किए थे। कुछ लोग रिपीट भी करते हैं और उसके एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं, लेकिन रिपीट आप तभी कर सकते हो जब आप सारे कंप्लीट करेंगे तो। ठीक है, लेकिन उसका कोई वो नहीं होता है कि आपको नंबर 1 2 3, आप किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। कुछ लोगों को ये डाउट रहता है कि मैं पहले 1 करूंगा 2, जिस ऑर्डर में ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं ना, मैं सजेस्ट करूंगी उसी ऑर्डर में आप लोग ऑब्स्टेकल्स कीजिए, उससे आपका टाइम बचेगा तो आप अपने ऑब्स्टेकल्स रिपीट भी करने को आपको टाइम मिल जाएगा। ठीक है, एंड देन कम्स योर ग्रुप टास्क में आपका आता है कैटेगरी 3। कैटेगरी 3 में आपके आ जाते हैं ग्रुप टास्क। कमांड टास्क हो गया, हाफ ग्रुप टास्क हो गया, ग्रुप टास्क हो गया। इसमें क्या चेक किया जाता है? इसमें आपका टीम वर्क चेक किया जाता है। ठीक है, टीम वर्क आपका चेक किया जाता है। सोशल अडेप्टेबिलिटी जो आपका OLQ है वो इसमें चेक होगा। ठीक है, कि आप कमांड टास्क कर रहे हैं, आप अपने हेल्पर्स को इनवाइट कर रहे हैं, आप कितनी बार एज अ हेल्पर बन के आए हो, उसके भी पॉइंट्स होते हैं। उससे ये पता चलता है कि ये बंदा सोशली बहुत अडेप्टेबल है, मतलब इसकी लाइकिंग है, पीपल लाइक हिम, दैट इज व्हाई दे आर कॉलिंग हिम। ठीक है, दूसरा आपका ग्रुप इफेक्टिवनेस, जो यहाँ पे वो सेम सोशल अडेप्टेबिलिटी हो गया आपका। देन प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, आप प्रैक्टिकली कितना अपना दिमाग अप्लाई कर सकते हो किसी चीज को लेके, वो चेक होता है यहाँ पे। आपका लॉजिकल एंड एनालिटिकल माइंड यहाँ पे चेक होता है। आप कितने लॉजिक के साथ, कितने एनालिसिस के साथ चीजें कर रहे हो, वो यहाँ पे चेक होता है। एंड दिस इज कॉल्ड योर ग्रुप टास्क एंड ऑल योर कमांड टास्क एंड ऑल एवरीथिंग। ठीक है, क्योंकि जब कमांड टास्क है उसमें आपको बुलाया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि ये चीज को क्रॉस करना है यहाँ से वहाँ, या ये सोल्यूशन दो, तो आप कितना लॉजिक के साथ, हाउ लॉजिकल यू आर, दे वुड बी चेकिंग दिस क्वालिटी इन यू इन दिस